ہاں عائشہ، میری امت میں، میرے اصحاب میں، میری آل میں، میری جماعت میں، میرے یاروں پیروکاروں، حبداروں، جانثاروں، وفاداروں، وفاشیاروں میں میرا یار عمر بن خطاب وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ تو طیبہ کائنات نے جب یہ جواب سنا، طیبہ کائنات خاموش ہو گئی، مہر قلب ہو گئی، سکوت و سناٹا چھا گیا، خاموشی طاری ہو گئی، اور پیغمبر تو چہرہ شناس تھے، اور طیبہ کائنات کے چہرے کے خط و خال کو پڑھنا تو میرے پیغمبر کا کمال تھا۔ حضور نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، عائشہ کیا بات ہے، تو میرے جواب کے بعد مجھے خوش نظر نہیں آئی؟ عائشہ کیا بات ہے، میرے جواب کے بعد تیرے چہرے پہ اظہار مسرت نمایاں نظر نہیں آئے؟ عائشہ کیا بات ہے، میرے جواب کے بعد میں نے تیری جبین پہ ہنسی کی کرن کو رقصہ ہوتے نہیں دیکھا؟ عائشہ کیا بات ہے، میرے جواب کے بعد تیرے چہرے پر اظہار اطمینان نظر نہیں آیا؟ تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر، میں تو آج تک یہ سمجھتی تھی کہ شاید آپ کی پوری امت میں، آپ کی پوری جماعت میں، آپ کے سارے یاروں میں، آپ کے پیروکاروں میں، آپ کے ان جانثاروں میں میرا باپ ابو بکر سب سے آگے ہوگا، عبادت میں اول، ریاضت میں اول، تلاوت میں اول، جذبے میں اول، جہاد میں اول، اللہ کی حمد و ثنا، تمجید و تقدیس و تعریف و تحمید و تسبیح و تعلیل میں وہ سب سے آگے ہوگا۔ لیکن آپ نے میرے سوال کے جواب میں میرے باپ ابو بکر کا نام نہیں لیا، بلکہ عمر بن خطاب کا نام لیا۔ تو حضور میں آج سمجھ گئی کہ میرا باپ ابو بکر پیچھے رہ گیا اور عمر میرے باپ سے آگے نکل گیا۔ میزبانوں، سرگودا والوں، مدنی مسجد والوں، پیغمبر کا جواب سنو، تمہارا ایمان تازہ ہو اور تمہیں ابو بکر کی عظمت کے میناروں کی بلندی کا اندازہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ، 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 تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے؟ تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے؟ اللہ اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، خلیفہ بلا فصل ابو بکر، ابو بکر، نچن سے جس کے عرش پر ابو بکر، ابو بکر، لگے نظار و فرش پر ابو بکر، ابو حضرت بکر، مولانا یحییٰ عباسی صاحب یہ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی تھکی ہوئی نہیں، فریش سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میں کوشش کر رہا ہوں میرا دوست مجھے کل کو گیلا نہ دے، عباسی صاحب تسی سانو ٹرکھا دیتے ہیں تے مجمع جدوں ٹرکھاؤن والا ہوئے تے پھر میں کی کراں؟ جن کی ہے توجہ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میں آج سے موضوع شروع کر جاؤں گا، وائنڈ اپ پھر کبھی کروں گا انشاءاللہ، جب جلسہ ہوگا باقاعدہ ہوگا، آپ بھی زندہ ہوں گے، تھکے ہوئے نہیں ہوں گے، کھانا کھایا ہوا ہوگا۔ پوری توجہ رہے، بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ طیبہ کائنات کے سوال کے جواب میں ہاں حضور نے فرمایا عائشہ، 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 تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے؟ تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے؟ سبحان اللہ، اگر تو مجھ سے یہ پوچھتی کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے تو پھر زبان محمد سے سن، فرمان محمد سے سن، کلام محمد سے سن، بیان محمد سے سن، وجدان محمد سے سن، عمر کی ساری عمر ایک طرف، سبحان اللہ، عمر کی ساری عمر ایک طرف، تیرے باپ کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کہ کبھی آپ نے اس مقام پہ رک کر تھوڑا سا اس سمندر میں غوطہ لگایا، ڈیپ تک گئے، عمق تک گئے، گہرائی تک گئے، اور کبھی بیٹھ کے سوچا کہ اللہ کے پیغمبر نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا، اتنا بڑا جملہ کہ عائشہ عمر کی ساری عمر ایک طرف، کس کی؟ عمر کی، عمر کی، کسی عام صحابی کی نہیں، عمر کی، عمر کی ساری عمر ایک طرف، تیری باپ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا جملہ عمر کے لیے کہ عمر کی ساری عمر ایک طرف۔ کون عمر؟ جس کو مانگنے کے لیے میرا پیغمبر آدھی آدھی رات کو کعبے میں روتا نظر آیا۔ کون عمر؟ جو کلمہ پڑھے تو فرشتے بھی نعرے لگاتے نظر آئے۔ کون عمر؟ جو کلمہ پڑھے تو کعبے کا در کھلتا نظر آئے۔ سبحان اللہ، کون عمر؟ جو کلمہ پڑھے تو کعبے کی دہلیز پہ توحید کے سجدے شروع ہوتے نظر آئے۔ سبحان اللہ، کون عمر؟ جو
वहीं पे बोले अल्लाह आसमान पे कुरान बनाता नजर आए? कौन उमर जो दरियाओं को चिट लिखे दरिया बहते नजर आए? कौन उमर जो जल्जला आए जमीन पे दुर्रा मारे तो जल्जला ऐसा रुके 1400 साल हो गए, उसके बाद दुनिया में जल्जले आए, मदीने में फिर नहीं आए? कौन उमर जो नबी को पर्दे का मशवरा दे, अल्लाह उसे शरीयत बनाता नजर आए? कौन उमर जिसके लिए पैगंबर कहे लौकान आबादी नबी और लकाना उमर, उमर तेरे मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद है, अगर तू होता नबूवत का दरवाज़ा खुला होता, तेरे सर पे नबूवत का ताज आता? कौन उमर जिसके लिए पैगंबर कहे उमर जब किसी का बाप मरे बच्चे रोते हैं, बच्चा मरे बाप रोता है, जिस दिन तू मरेगा मेरा इस्लाम रोएगा? कौन उमर जिसके लिए पैगंबर ने कहा उमर अल्लाह ने तुझे ऐसा रोक दबदबा जाहो चलालो कमाल दिया है, जिस गली से तू गुजरे शैतान नहीं गुजर सकता। हुजूर ने देखा, हज़रत अली शेर खुदा ने सुना कि गली में शोर शराबा है। अली कहते मेरी आँख खुली, मैं उठा और मैंने गली से झांक कर देखा कि बाहर देखूं शोर कैसा है। अली शेर खुदा कहते हैं मैंने देखा कि बाहर मक्के के काफिर जमा हैं और हाथों में तलवारें हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं नऊज़ बिल्लाह आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है। हज़रत अली फरमाते मैं वहाँ से दौड़ा और भाग कर आया, मैंने आकर हुजूर को जगाया, हुजूर जागे, पूछा अली खैरियत क्या हुआ? अली शेर खुदा ने कहा हुजूर खैर नहीं है। हुजूर ने पूछा अली हुआ क्या? अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह के नबी बाहर दुश्मन आपको मारने आए हैं। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा अली घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह के नबी कैसे कुछ नहीं होगा? हम 2 वो 100, हम अकेले वो लश्कर, हम खाली हाथ वो मुसल्ला, कैसे कुछ नहीं होगा? हुजूर ने फरमाया अली घबराने की ज़रूरत नहीं, मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले से। अली घबराने की ज़रूरत नहीं, मारने वाले अभी आए, बचाने वाला पहले से खड़ा है। अली शेर खुदा ने कहा हुजूर अब क्या होगा? हुजूर ने फरमाया अली देख मैं इनके साथ करता क्या हूँ। मट्टी उठाई, शातर वुजू पड़ी, कब्र के चेहरे पे डाली, ऐसा अंधा किया कि हुजूर ने फरमाया देखना ये मट्टी डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। दर सिद्दीक पर दरवाजे पे दस्तक दी, अब पीछे अबू जाल एंड कंपनी, इन्होंने देखा कि इतनी देर हो गई कोई बाहर नहीं आया, तो इन्होंने कहा दीवार फलांग अंदर जाओ और नऊज़ बिल्लाह अंदर जाकर हुजूर को शहीद कर दो। अंदर गए, सामने देखा चारपाई हुजूर की, बिस्तर हुजूर का, चादर हुजूर की, कंबल हुजूर का, और कोई सोया हुआ, और कोई सोया हुआ है। अबू जाल ने समझा कि ये अल्लाह का नबी सोया हुआ है। क्यों? घर भी हुजूर का, चारपाई हुजूर की, चादर हुजूर की, कंबल हुजूर का। हाँ, तो गलत फहमी तो लगनी थी ना, तो उसको गलत फहमी लग गई जिंदगी में पहली दफ़ा कि ये शायद नबी है। अबू जाल ने करीब जाकर कहा कुम या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद उठो। लेकिन जब चादर हटाई चेहरे से, अबू जाल के पाँव से ज़मीन निकल गई। अबू जाल हैरान परेशान, सरगर्दान, पशेमान, गोश्त दंदान, आँख में खत कि मैं तो समझ रहा था नबी है मगर ये तो अली है। सुभान अल्लाह, ये तो अली है। अली है। अबू जाल परेशान होकर पूछता है अली ये तो नबी का बिस्तर है, मैंने तो समझा नबी है, मगर तू तो अली है। बिस्तर हुजूर का, चादर हुजूर की, कंबल हुजूर का, घर हुजूर का, और सोया तू है। मैं तो तुझे नबी समझ रहा था, शुक्र पढ़ मैंने तुझे चादर के ऊपर से तलवार नहीं मार दी, मैं तो समझ रहा था ये अल्लाह का नबी सोया हुआ है। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ किसी की रूह को इसाले सवाब पहुँचाने के लिए कि ये फैसला 1400 साल पहले हो गया कि जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा था वो अबू जहल। आज तक अबू जहल की नस्ल अली को नबी समझा। अब अली उठे, अबू जहल ने पूछा अली नबी कहाँ गए? नबी कहाँ गए? अब तो जो करना, अली ने ना झूठ बोला न तकिए का दर्द बोला। अली ने ये नहीं कहा मुझे पता नहीं, क्यों? पता था। हुजूर सब कुछ बता के गए थे। अली मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, उसको लेके वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ से हम वहाँ जाएंगे, तू भी ये मक्के वालों की इमानतें रखी हैं, ये तकसीम करके तू भी हमारे पीछे पीछे आ जा। तो मतलब क्या निकला? हुजूर ने सारा शेड्यूल, सारा रूट अली को बता दिया था। हाँ, अली को पता था
मगर अली ने न झूठ बोला न तकिए का दर खोला। अली ने ये नहीं कहा मुझे पता नहीं, क्यों पता था। अबू जाल ने पूछा अली नबी कहाँ गए? अली ने कहा वो तो चले गए, वो तो चले गए। अबू जाल ने फिर पूछा कहाँ चले गए? अली ने कहा जहाँ जाना था। जहाँ जाना था। सुभान अल्लाह। जहाँ जाना था। अबू जाल ने फिर पूछा कहाँ जाना था? अली ने कहा जहाँ गए। सुभान अल्लाह। जहाँ गए। चले गए। अब अबू जाल को उल्लू का पट्टा बना दिया, लाठों की तरह घुमा दिया, मगर नबूवत का राज नहीं बताया। ये अली का इल्म है, हिल्म है, तदब्बुर है, फरासत है, सूझबूझ है, अक्ल व दानिश है, इल्म व इरफा है, ज़ौक़ व तक़वा है कि अली जान दे सकता था, नबूवत का राज नहीं दे सकता। आज की रात अगर मोहम्मद गया होगा तो दरे अबू बकर पे। सुभान अल्लाह। सारे पीछे भागे कि चले उधर पीछा करें। उधर सिद्दीक हुजूर पहले पहुंच चुके, दरवाजा खटखटाया, सिद्दीक ने दरवाजा खोला, सामने देखा चौधरी के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नजर आया। अबू बकर की आंखों से आंसू छलक पड़े। अबू बकर ने पूछा हुजूर फिदा का भी कहूँगी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ, ये क्या आधी रात को आप मेरे दरवाजे पर, कोई काम था, कोई मसला था, कोई मुश्किल थी, कोई प्रॉब्लम थी, कोई नुमाइंदा कासिद गुलाम नौकर चाकर भेज कर मुझे तलब करते मैं सर के बल चल के आता, हुजूर आपने क्यों तकलीफ की? हुजूर का जवाब सुन, हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुझे पता नहीं कि मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूं। अबू बकर तुझे पता नहीं मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं, मैं तो उसका प्रभु हूं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मुझे तो जैसे वो कहता जाता है मैं वैसे करता जाता हूं। आज मुझे आर्डर ही नहीं था कि मैं तुझे बुलाऊं, बल्कि आर्डर ये था कि मैं चल के खुद तेरे दर पे। क्यों? इसलिए कि जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे के दरवाजे पे चला जाए ना तो फिर उस छोटे की इज्जत बढ़ जाती है, उस छोटे की इज्जत बढ़ जाती है। हाँ, तो अल्लाह ने कहा अबू बकर मैं तेरे दरवाजे पे उसको भेजूंगा जिससे बड़ा कायनात में है ही कोई। क्यों? मैंने तेरी इज्जत भी उम्मत में ऐसे बढ़ानी है कि किसी उम्मत के किसी उम्मती की इज्जत तेरे से ज्यादा होगी। तो सबका इमाम होगा, तो सबका कायद और रहबर और रहनुमा होगा। हुक्म हुजूर ने कहा अबू बकर दुश्मन पीछे है, चलो चल रहा है, चलो चल रहा है, जाओ तारीख की किताबें खंगाल के देखो। अबू बकर ने कोई आर्गूमेंट, कोई बासो तमीज़, कोई गुफ्तगू, कोई सवाल जवाब, कुछ भी नहीं। हुजूर ने कहा चलना है, अबू बकर चल पड़े। चलते 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 थोड़ी देर तक दूर तक गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जरा जल्दी चल, दुश्मन पीछे है, हमने गार तक पहुंचना है। तेज चलने लगे, थोड़ा आगे तक गए। अबू बकर ने कहा हुजूर 1 मिनट रोक के मेरी बात तो सुन ले। हुजूर ने कहा अबू बकर ये क्या तू अजीब बात कर रहा है, मैंने अभी तुझे कहा तेज चल, दुश्मन पीछे है, और तू तेज चलने की बजाय मुझे कहता है रोक के तेरी बात सुनूं। तू चलता भी जा, बात करता भी जा, मैं सुन लूंगा। अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी 1 मिनट के लिए रुक जाए, नहीं तो मेरी जान निकल जाए। हुजूर रुके और रोक के पूछा अबू बकर ऐसा क्या हुआ कि तेरी जान निकलने लग गई? अबू बकर ने कहा हुजूर आपके पाँव के तलवों से खून बह रहा है और वो खून के कतरे मुझे नजर आ रहे हैं, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है कि आपका पाँव जख्मी हो और मैं आपको पैदल चलने दूं। हुजूर ये हो नहीं सकता। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा अबू बकर अगर पैदल न चलूं तो क्या करूं, आधी रात का वक्त है, सवारी कहां से लाऊं? तो सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर घबराने की क्या जरूरत है, अगर सवारी नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी। अब एक और अगला जुमला कह रहा हूँ, उम्मीद है जिसको रब ने जबान दी है वो खामोश नहीं रहेगी। अगला जुमला कह रहा हूँ, जरा दिल से सुनना, फिर दिल से सुभान अल्लाह कहना। सिद्दीक बैठे, नबुव्वत को कंधों पे उठाया और उठा के उड़ पड़ा। मैंने कहा मैंने तारीख में पढ़ा है हुजूर ने जिस सवारी पे सवारी की वो चली नहीं, उड़ गई। क्यों? आपने रोज सुना होगा कि हलीमा सादिया की ऊँटनी जो जाते हुए चल नहीं सकती थी, जाते हुए चल नहीं सकती थी। वापसी पे दाइयाँ पूछ रहे हैं हलीमा क्या जादू किया है, ये तो चल नहीं सकती थी अब तो उड़ के जा रही है। मैंने तो उस बीमार ऊँटनी को देखा कि आते हुए चल नहीं सकती, जब हुजूर के ऊपर चढ़े तो वो चलने की बजाय उड़ने लग गई। दाइयाँ परेशान, ये चल नहीं सकती थी अब तो उड़ के जा रही है। मैंने बुराक को देखा, नबी को उठाया तो उड़ने लग गई। मैंने अबू बकर को देखा, अबू बकर ने भी नबी को उठाया तो पहाड़ पे उड़ के चढ़। जी वीवर माशाल्लाह मौलाना याह्या अब्बासी साहब हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान किया है। जी भाई हमें साहब तो
ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਾਨ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਟਰੀ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਸਾਰੀ ਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਵਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸੱਪਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਲੌਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਤਾ ਦੇ ਅਨਵਰ ਐਸ ਕੇ 166 ਵਲੌਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆ